So now we go to the other book, The Miracles of Your Mind, और हम उसमें बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अपने सबकॉन्शियस से, इनर गाइडेंस से हम कैसे बात करके सारे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जूसेस वहां से, अच्छी अच्छी चीजें। हम कुछ भी लाइफ में अचीव करना है, आप वो अपने सबकॉन्शियस को बोलो, रिक्वेस्ट कर दो, ऑर्डर दे दो, कमांड दे दो, एंड यू विल गेट इट। तो इसमें था अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने सबकॉन्शियस से पूछ लो कि टू माई इनर बीइंग, आई नो दैट यू हैव ऑल द आंसर्स, I really want to start receiving so much money in your life. I know that you have the answer to this, and please guide me into, like showing me the way that I can start receiving 10 lakhs every month with ease, while doing with a perfect work life balance and doing everything that I love to do. अब आपने ये क्वेश्चन, so say that I'm turning over this question to you and I know that you have the answer and I'm very grateful for the answer that you're giving to me. बस उसके बाद सुबह उठो और बिजी हो जाओ और पूरे दिन मस्त रहो, अपना काम वाम करो, उस क्वेश्चन के बारे में मत सोचो। ठीक है, यही बोला उन्होंने कल वाले सेशन में, यही बताया था, यही पढ़ा था हमने कि पूरे दिन मस्त हो जाओ, मत सोचो उस क्वेश्चन के बारे में, वो आपने दे दिया है ना, अब उसके बारे में अपना कॉन्शियस माइंड मत यूज करो, बिफोर फिर लॉजिक्स आने लग जाएंगे और आपको वो जवाब मिल जाएगा। और कभी भी आपका पूरे दिन भर में मन थोड़ा शांत होता है, व्हेन यू गेट अ लिटिल डिस्टर्ब, देन यू कीप, लाइक टेल योरसेल्फ दैट लव, पीस, हार्मनी, success, growth. This is what, just chant on the words, meditate on these. I'm like, whatever it is, like if you're calm, you can meditate on these words, you can chew on these words, you can chant these words, but this is what has to come to your mind. और फिर उसके आगे और भी क्या करना है ये भी लिखा हुआ है जो हम आज पढ़ेंगे. So yes, Megha Gupta, you're reading for us today. Ma'am, it seems that Megha is not. Megha is not there. Yeah. Anyone would like to volunteer? Shall I read, ma'am? हाँ मोहित जी, please do. Never think about your problem in this manner. Quote, things are getting worse. I will never get the answer. I see no way out. It is hopeless. You are reversing the law and undoing the good work you have done. Thinking about the answer activates the intelligence of the subconscious, which knows all, sees all, and has the know-how of accomplishment. The subconscious mind has the power to create. It also obeys the orders given to it by the conscious mind. Remember always this simple truth. The conscious mind has the power of choice. The subconscious does what it is told to do. The latter accepts your beliefs and convictions and brings them into your experience. It is an infinite creative power. Some time ago, I received a clipping from a magazine describing how Dr. Banting solved his problem of diabetes. He had made a profound study of the disease. One night, he was awakened in the early hours of the morning with the answer to extract the substance from the degenerated pancreatic duct of dogs. It was the origin of insulin, which has helped millions of people. It does not follow that you will always get an answer overnight. The answer may not come for weeks or months. Do not be discouraged. Keep on turning it over every night to the subconscious mind prior to sleep, as if you had never done it before. One of the reasons for the delay may be that you look upon it as a major problem. You may believe it will take a long time to solve it. हाँ, 1 second मोहित जी, विल जस्ट टेक अ पॉज हियर. सो इसमें 2-3 चीजें हैं. ये बताया कि रात को सपोज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन पूछ के सोए हो, उसके बाद आपको सुबह उठ के जब आप उठोगे तो आपको उस सवाल के बारे में नहीं सोचना है. आपने सपोज पूछा था कि मुझे अपने बिजनेस का टर्नओवर डबल करना है ना, सपोज वो अभी हो रहा है हर क्वार्टर में 25 लाख या 50 lakhs हो रहा है, आपको उसको 1 CR पे लेके जाना है. तो आपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन पूछा दैट टू गेट अ ब्रिलियंट आइडिया दैट यू कैन टेक योर बिजनेस टू 1 CR टर्नओवर एवरी क्वार्टर, है ना. सो नाउ डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट बी परेशान दैट अरे मुझे आंसर कब आएगा, आंसर कब आएगा, व्हेन विल आई, अभी तक तो आया नहीं, अभी तक तो आया नहीं. नो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. द आंसर विल कम एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम, जब आप बिल्कुल काम होते हो. सो इसमें लिखा है कि जब आप नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, डोंट थिंक अबाउट दैट ओ गॉड थिंग्स आर गेटिंग वर्स, मुझे कब जवाब मिलेगा,
और आई लुक्स लाइक आई विल नॉट गेट द आंसर, मुझे तो कोई तरीका नहीं नजर आ रहा, आई एम फीलिंग सो होपलेस, दैट वे यू आर रिवर्सिंग द लॉ. That is what Dr. Joseph Murphy has written, that you don't have to be परेशान. अगर you have a strong parent in the universe, है ना, सो वो और हम तो छोटे बच्चे की तरह हैं, है ना, जो बच्चा जब बचपन में उसको कोई वो एरोप्लेन चाहिए था, हवा में उड़ता है, तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता था और उसको बहुत कन्विक्शन होता था कि मुझे ये मिल जाएगा, वो रो के धोखे बना लेता था इस तरह से. तो इसीलिए यूनिवर्स इज अ पेरेंट, जो हमको चाहिए वो हमको सब मिलेगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन जो हमारा उस पेरेंट के साथ है वो सिर्फ एनर्जी के पाथवे से है. वो ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी और सरेंडर की एनर्जी से है. सरेंडर ग्रैटिट्यूड लव, सरेंडर ग्रैटिट्यूड लव, वेर यू हैव फुल फेथ. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने फेथ के बारे में बहुत बोला है, दैट आप बिलीव करो कि आपका वो हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स आपको कह रहा है ये आपके लिए सही नहीं है, आगे जाके बहुत गहरा गड्ढा है जिसमें आप जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका काम नहीं बनेगा. यू बैडली वॉन्टेड राइट नाउ, बिकॉज हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव है, तो हमें लगता है कि नो नो आई हैव टू गेट दिस जॉब. तो बट आपकी वो जॉब चलेगी नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा, बिकॉज यूनिवर्स को ये पता है कि आपके लिए वो वाला काम था, आपके लिए ये वाला काम ही नहीं है, इसमें आगे जाके गड्ढा है, उस वाले काम में बहुत आगे आप लंबी रेस दौड़ोगे, ठीक है. तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे फेल कर देगा, इस वाली जॉब में फेल कर देगा, बिकॉज आप छोड़ने को तैयार नहीं हो, या मतलब जो भी हो रहा है वो नहीं हो, तो आप दूसरे पाथ पे चले जाओगे. बट ये सरेंडर वाले एटीट्यूड के साथ होता है, ये कोएर्जन और फोर्स के साथ नहीं होता. तो अपने आप आपके पास दूसरी जॉब आ जाएगी. Like maybe you'll meet someone, that person will tell, and then you are in a dilemma whether I should, यहाँ पे तो मेरा ठीक ठाक चल रहा है, मैं वहां पे जाऊं कि नहीं जाऊं. But then something will just work out and the universe will take you on that pathway. So this is how it works. तो इसीलिए सरेंडर, फेथ, बिलीफ, लव एंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना बहुत जरूरी है, एंड टू हैव दैट इनेट kind of a belief that I know that universe will always do the best thing for me, because I know everything is always working out for me. I know that universe has my back. तो इस तरह से जब हम बोलेंगे तो then you will not say a way to, you'll not fail in life, है ना. वही वाली जो मैंने बताई थी स्नेक्स एंड लैडर्स की कहानी याद रखना. सांप ने काटा है ना, आपको दिख रहा है सांप आता हुआ, पट से ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में चले जाओ, आप बाउंस हो जाओगे ऊपर, धरती से 100 फीट ऊपर. अब स्नेक नहीं काट सकता आपको, क्योंकि स्नेक फ्लाई नहीं करता है, ठीक है. सो इस तरह से जब हम करते हैं, वी विल सी दैट लाइक वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, बिकॉज यू हैव दैट सरेंडर टू द यूनिवर्स. इसलिए हमको फालतू की चीजें नहीं बोलनी है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे पास जवाब क्यों नहीं आया, मेरा तो ये हो रहा है. वी डोंट नीड टू डू दैट. फिर इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्शियस माइंड के पास एबिलिटी होती है चूज करने की. हमको पता है हमारे पास दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड है जो 4% पावर कैरी करता है, सबकॉन्शियस माइंड है जो 96% पावर कैरी करता है. हमको ये पता है कॉन्शियस माइंड के पास एबिलिटी टू चूज है, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है, एबिलिटी टू चूज, ठीक है. सो आप चूज कर सकते हो, आई वांट टू चूज टू स्टे इन दिस एनर्जी, और आई वांट टू चेंज इट, ठीक है. अगर बिजनेस में कोई गड़बड़ हुआ, आपको लग रहा है कि बिजनेस में इस बार थोड़ी सेल कम हुई है, जो हुआ है, आप दूसरा एबिलिटी टू चूज, आप फट से वो वाला थॉट चूज किया, माई बिजनेस इज थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग एंड माई बिजनेस सेल्स इज इंक्रीजिंग बाय इट इज डबलिंग इन दिस क्वार्टर, करेंट क्वार्टर. बस जैसे कल मैंने एक डेक्लेरेशन लिखी थी, अपने आप को ही लिखी थी, जब सारे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस ब्रह्म मुहूर्त में कर ली थी, तो 5 बजे के आसपास जब वो मेरा खत्म हो गया था, 5:20 फिनिश माई प्रैक्टिसेस, तो मैंने तभी लिखा था दैट आई दीप्ति वर्मा डिक्लेयर ब्ला 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 दिस दैट बाय 31st of December I have so much money in my bank account. I'm like, मैं अपने साथ खेल रही हूँ ना, हाउ डज इट मैटर. यूनिवर्स को तो बड़ा मजा आता है कुछ भी लाइफ वर्ड चीज करो, जैसे आप बोलो दैट बाय 31st December आई एम एंजॉयिंग रोबस्ट हेल्थ एंड दिस एंड दैट, तो यूनिवर्स को तो बहुत मजा आता है ना, बिकॉज हर चीज जो लाइफ वर्ड थॉट्स होते हैं, तो ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस इन द यूनिवर्स आर डांसिंग दैट हमने सही बच्चा भेजा है धरती पे, ये इसको पता है अपना गेम कैसे खेलना है, एंड ही एंड शी इज विनिंग वन आफ्टर द अदर. सो बिकॉज मेंटल एटीट्यूड हमारा फिर वही होना है ना, तो अपनी मस्ती में रहो, मेक थिंग्स हैपन, इट्स नॉट हैपनिंग नो देन मेक इट हैपन, इट इज लाइक दैट. सो इस तरह से जब हम करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है दैट कॉन्शियस माइंड के पास एबिलिटी टू चूज है, सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर्स ओबे करता है ना. तो जो कल उन्होंने हमको सिखाया था डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, कि कभी भी दिमाग परेशान हो रहा है, मन में चिंता आ रही है, या कोई भी ऐसी फीलिंग आ रही है जो आपको लग रहा है इट इज बिलो द फ्रीक्वेंसी, आपको नहीं करनी है ना. जैसे डिप्रेसिव फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, सैडनेस आ रही है, अनहैप्पीनेस आ रही है, जेलसी हो रही है, किसी से ग्रज हो रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, कुछ हो रहा है, इरिटेशन हो रही है आपको किसी पे,
Love, peace, harmony, goodwill. Love, peace, harmony, goodwill. Love, peace, harmony, goodwill. Thank you. Gratitude कर सकते हो. Thank you. I love you. Love, peace, harmony. Thank you. I love you. सो इन वर्ड्स की एनर्जी अब कॉन्शियस माइंड में आपने फट से चूज कर लिया, बिकॉज डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्शियस माइंड हैज द एबिलिटी टू चूज. तो आपने चूज किया. आपने चूज किया क्या? मतलब इरिटेशन हो रही है आपको किसी के बिहेवियर से, ठीक है, आप बोल रहे हो लव, पीस, हैप्पीनेस, थैंक यू, आई लव यू. लव, पीस, हैप्पीनेस, थैंक यू, आई लव यू. लव, पीस, हैप्पीनेस, थैंक यू, आई लव यू. और आपका ये मंत्र ही चल रहा है अलग अलग. मंत्रा बस वो चीज होती है, जो अच्छी चीज, जो आप हाई एनर्जी की, जो आप रेपिटेटिवली करते हो, ठीक है, इसी को मंत्रस बोलते हैं. मंत्रस आर नेवर सिंगल, मोस्टली रेपिटेटिव. सो आप जब उसको रिपीट करते जाते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती जाती है, और आपके कॉन्शियस माइंड ने कैप्चर कर ली है इस वर्ड्स की एनर्जी. अब सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ओबीडियंट सर्वेंट, ठीक है, वो कहता है जी सो इट इज, जो हुक्म. सो इस तरह से इट विल एब्जॉर्ब दिस फ्रीक्वेंसी. हालांकि आपको बहुत अर्लियर इरिटेशन हो रही थी किसी चीज से, बट आपने अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क किया उसी वक्त, और सबकॉन्शियस में अब ये वाली एनर्जी चली गई, ठीक है. अपने आप देखोगे कि अब जो एनर्जी चली गई, ये अब आपको अपना लाइक आपके अंदर क्रिएटिव पावर्स आ जाती है. क्रिएटिव पावर्स आपके पास तभी आती है जब आप रेस्ट रिलैक्सेशन मोड में होते हो, यानी कि जब आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेटेड रहता है. उसको क्रिएशन, मोड ऑफ क्रिएशन बोलते हैं ना. डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब में हमने पढ़ा था. एक होता है सर्वाइवल मोड. सर्वाइवल मोड जब मन अशांत होता है, दिल, हार्ट बीट तेज होती है, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल मोड. बस आप सर्वाइव कर रहे हो जैसे तैसे, है ना, जी रहे हो उस वक्त. और एक होता है क्रिएशन का मोड, कि आप अपनी ब्यूटीफुल फ्यूचर और अपनी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हो. वो होता है जब आप पैरासिम्पथेटिक नर्वस, जब आप काम एंड रिलैक्स्ड होते हो. तो ये लव, पीस, हार्मनी, जॉय, ये तो सारे इसीलिए है ना, क्योंकि हम क्रिएटिव मोड में जाना चाहते हैं. और अगर यूनिवर्स को आपको जवाब देने हैं, सो यू विल ओनली गेट इट इन द क्रिएटिव मोड, यू विल नॉट गेट इट इन द सर्वाइवल मोड. आंसर्स विल ओनली कम इन दैट मोड. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस. फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया डॉक्टर बैंटिंग का. हम सबको पता है उन्होंने इंसुलिन का इजाद किया था. आई मीन ही हैड डिस्कवर्ड इंसुलिन. अब उनको ये हंच आया था. उन्होंने मतलब कुछ, उन्होंने पूरा क्रेडिट यूनिवर्स को दिया है अपने डिस्कवरी का, कि जो इंसुलिन आई थी, जो डायबिटीज के क्योर में आजकल यूज भी होती है, उसकी दवाइयां भी बनती है, उसके शॉट्स भी बनते हैं, वो उनको यही पता लगा था. वो सुबह सुबह उठे थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे. ये भी है ना, जितने भी लोग बड़े बड़े डिस्कवरर्स थे ना, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे. वो दे वर नॉट लेट टू बेड एंड लेट टू वेकिंग अप. सुबह सो के उठे थे, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग में उनको एक मतलब हंच आया, और उन्होंने एक डीजेनरेटेड, मतलब एक डॉग की, जो मरा हुआ डॉग था, उसका खराब, मतलब ऑब्वियसली पैनक्रियास उसका खराब हो गया था, सब हो गया था. वहां से उन्होंने इंसुलिन को निकाला, जो आज की तारीख में मिलियंस ऑफ पीपल को हेल्प कर. ओके, सो इट हैपेंस दैट हमेशा, मतलब जो आंसर होता है, कई बार इसमें लिखा हुआ है कि वो ओवरनाइट नहीं मिलता, हो सकता है वो आपको 1 महीने के बाद मिले. तो इसीलिए पेशेंट रहो. ये प्रैक्टिसेस हमको बहुत रेजिलियंस एंड पेशेंस भी सिखाती हैं, है ना. जिस चीज की हमें बहुत कमी होती है, हमें पेशेंस की बहुत कमी होती है. सो बहुत रेजिलियंस से सिखाती है. तो इसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट बी डिस्करेज अगर आपको ओवरनाइट अगले दिन आंसर नहीं आया, ठीक है. हर रात आप सबकॉन्शियस माइंड को बोलो एज इफ यू नेवर डन इट बिफोर. सो आप रिपीट करो वो क्वेश्चन आपने पूछा था ना, जो कल, जिसका आज आपको जवाब नहीं मिला, आज फिर दोबारा पूछो उसको. फिर कल दोबारा पूछना उसको जब तक आपको आंसर, बट सिर्फ रात को, पूरे दिन भर में नहीं. सिर्फ रात को सोने के पहले आप क्वेश्चन दोबारा पूछो, और बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ पूछो. ऐसे नहीं कि रेजिस्टेंस है, अभी तो हुआ नहीं, आज मुझे दोबारा पूछना पड़ रहा है. नॉट लाइक दैट. ऐसे पूछो एज इफ आप पहली बार ही पूछ रहे हो. ये लिखा हुआ है. तो हम आगे पढ़ते हैं. वन ऑफ द रीजंस. One of the reasons for the delay may be that you look upon it as a major problem. You may believe it will take a long time to solve it. The subconscious mind is timeless and spaceless. Go to sleep believing you have the answer now and that the solution is yours now. Do not postulate the answer in the future. Have an abiding faith in the outcome. Become convinced now, as you read this book, that there is an answer and a perfect solution for you. Here is a very simple technique used from time immemorial to get an answer from the subconscious mind. Calmly think over what you want, such as the answer, the harmonious solution, or the right decision. The best time to turn over a request is just before going to sleep. Relax the body. Still the wheels of your mind. Suggest sleep to yourself.
You will begin to feel sleepy, but you are still consciously aware and capable of directing your attention. For example, you can hear a baby cry next door, or you can hear someone walking around the house. You are in a state akin to a sleep between the waking and sleeping state. The Nancy School of Therapeutics call this state the reverie. In this drowsy, meditative state, you induce the subconscious mind to take over your problem or request. The passing over to the subconscious mind is best accomplished through the above process. You infer no opponent. You use no willpower. You imagine the end, the solution, and the freedom state. Do this with complete naivete and simplicity. Have a simple childlike miracle making faith. Picture yourself without the problem. Cut out all the red tape from the process. The simple way is the best. This is an illustration. I lost a valuable ring. It was an heirloom. I looked everywhere for it and could not locate it. I decided to practice what I preach. At night I talk to the subconscious in the same manner that I would talk to anyone. I said to it prior to dropping off to sleep, you know all things, you know where that ring is, and you now reveal to me where it is. In the morning I awoke suddenly with the words ringing in my ear, ask Robert. I thought it very strange that I should ask Robert. However, I followed the inner voice of intuition. Robert said, "Oh yes, I picked it up the sidewalk in front of the house. It is in my drawer." It did not seem very valuable, so I did not say anything about it. The subconscious mind will always answer you if you trust it. Yeah, that is all we'll read today. Thank you so much, Mohitji, for reading. And even in this state, you could attend the sessions. Thank you so much, and God bless you with the best. So about ये जो लास्ट फ्यू पैराग्राफ्स पढ़े हैं, इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है दैट आप मतलब जस्ट फोकस योर अटेंशन. सोने के पहले स्टेट अकिन टू स्लीप को नेविल गॉडार्ड सैट्स बोलते हैं ना, SATS. स्टेट्स अकिन टू स्लीप मींस गेटिंग इनटू द अल्फा टू थीटा स्टेट के बीच का. थीटा में आपको कच्ची नींद आ रही होती है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. तो आप अपने आप वो जनरेट करो कंडीशन दोपहर के टाइम या शाम के टाइम. सपोज यू फ्री एट 6 o'clock इन द इवनिंग, जस्ट सिट, डोंट लाई डाउन. अगर आप सोगे तो स्टेट सेकंड टू स्लीप में स्लीप आ जाती है, ठीक है. तो ये बैठ के करना होता है ये हमको. तो आप आराम से विथ लेग्स फोल्डेड आप स्ट्रेट बैठो, आप डीप ब्रीदिंग करो, करते जाओ. आप एक्चुअली आप जागे हुए हो, लेकिन आप बिल्कुल मतलब ऐसे थॉटलेस, माइंडलेस, स्पेसलेस, टाइमलेस वाली फीलिंग आ जाती है ना. सांसों में इतनी पावर होती है. और डीप ब्रीदिंग, ये साइंस है कि डीप ब्रीदिंग आपको उसमें लेके ही जाएगी सैट्स कंडीशन में, स्टेट अकिन टू स्लीप. अब आप उसमें चले गए. अब आप कोई भी जो आपको क्वेश्चन पूछना है पूछ लो. जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है रिंग का. इस पर्सन की एक प्रेशियस रिंग खो गई थी और उस पर्सन ने बहुत ढूंढा. फिर उसने रात में सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस को बोला दैट आई नो दैट यू नो ऑल, आई नो दैट यू नो यू कैन फाइंड मी द रिंग. एंड बस ये कह के वो सो गया. और उसके बाद अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसको ये आंसर आया, आस्क रॉबर्ट, आस्क रॉबर्ट. ये इसके मन में ऐसे कई बार आवाज आती है, आस्क रॉबर्ट. फटाफट वो गया रॉबर्ट से पूछने के लिए और रॉबर्ट ने बोला, हाँ मुझे एक रिंग साइड पाथ पे मिली थी, सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली थी. मुझे लगा कि वो बहुत रैंडम सी रिंग होगी, इसीलिए किसी ने फेंकी होगी या उठाया नहीं है गिरने के बावजूद, तो इसलिए मैंने उसको लेके ड्रॉर में रख दिया था और मैं उसके बारे में भूल गया. तो फिर रॉबर्ट ने उसको वो वाली रिंग दे दी. तो इस तरह से अगर कभी भी हमारे मन में डायलेमा होता है, हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं. ओ गॉड, आई हैव लॉस्ट दैट रिंग, पता नहीं मेरा वो मैंने कहाँ रख दिया. आई हैड परचेज दैट पर्टिकुलर थिंग, कोई ज्वेलरी, तो अब पता नहीं मैंने उसको कहाँ रख दी.
है ना, हम इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। तो डाउट विल अट्रैक्ट मोर डाउट, बिकॉज बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे माइंड में चल रहा है, हम वो वाली एनर्जी और ज्यादा अट्रैक्ट करते जाएंगे। अगर हम बोलेंगे सपोज उसका पैसा नहीं आ रहा, 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 तो आपके सारे आने वाले पैसों पे रुकावट रख जाएगी। दे विल स्टॉप, द फ्लो विल स्टॉप, बिकॉज वेयर इज योर अटेंशन गोइंग? एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, इट्स अ साइंस। Okay, like attracts like is a science that you will always meet the people, circumstances, situation of the same frequency in your life, है ना? तो अब आप लगातार अगर ये सोच रहे हो पैसा नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, तो इस तरह आप सोचते हो दैट यू नो लाइक आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी, माई माइंड एंड बॉडी इज ऑलवेज काम स्टेबल एंड हैप्पी, और आप लगातार बोलते हो माई माइंड एंड बॉडी इज ऑलवेज काम स्टेबल एंड हैप्पी, माई माइंड एंड बॉडी इज ऑलवेज काम एंड स्टेबल एंड हैप्पी, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग दैट, you will see that everything in your environment is coming and you're attracting which is calm, stable and happy. आप अनहैप्पीनेस को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे। अगर कोई अनहैप्पी हो आपके एनवायरमेंट में, एनर्जी के हिसाब से रिपेल हो जाएगा, आएगा ही नहीं आपके एनवायरमेंट में। ठीक है, तो ये एनर्जी शिफ्ट हमको करने बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज हमारा जो जितनी भी आउटवर्ड रियलिटी है, कहते हैं ना मेक योर लाइफ अ मैजिकल मोमेंट, सो मैजिकल मोमेंट जिंदगी तभी बनेगी ना जब हम अंदर से उसको क्रिएट करेंगे। सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। सो उनको पता लग गया कि रॉबर्ट से पूछना है, रॉबर्ट से पूछा, उनको अपनी अंगूठी मिल गई और वो प्रेशियस रिंग थी, इसीलिए वो पहले परेशान हो रहे थे, बट उनको फिर ये वाली साइंस तो पता थी कि मुझे रात में सोने के पहले पूछना है, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस से पूछ लेता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड यू नो ऑल एंड यू विल रिवील द आंसर टू मी, है ना? तो इस तरह से उन्होंने क्या बोला था, मतलब एग्जैक्टली मैं तो पैराफ्रेज कर रही थी, वो उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला था, सबकॉन्शियस माइंड को बोला था सोने के पहले, यू नो ऑल थिंग्स, यू नो वेयर दैट रिंग इज, एंड यू नो एंड यू नाउ रिवील टू मी वेयर इट इज, सो यू नाउ रिवील टू मी नाउ टू वेयर इट इज। ठीक है, और सुबह उठते ही उनको फटाफट आ गया आस्क रॉबर्ट, खत्म, है ना? क्यों परेशान होने की जरूरत है जब इतनी बड़ी पावर लेके हम चलते फिरते घूम रहे हैं हर जगह, पोर्टेबल है, जो पोर्टेबल है ना, किसी और कंट्री में जाएंगे वहां पे भी ये पावर जा रही है, ऑफिस जा रहे हो वहां पे पावर जा रही है, वॉक करने जा रहे हो वहां पे भी ये पावर जा रही है, जिम जा रहे हो वहां पे भी ये पावर जा रही है, और क्या चाहिए जिंदगी में? जब इतनी बड़ी पावर है तो उसी उसी से शक करते हैं ना हम लोग। ओवर हेड टैंक लगा हुआ है, हम तो बस एक टैप है, तो अब पावर हमको वहीं से लेनी है, और उस टैप को ऑन करने का तरीका होता है लव, ग्रैटिट्यूड, सरेंडर, फेथ, पीस एंड हार्मनी। तो वो कर लेते हैं, करने में क्या जा रहा है, इसमें हमारा क्या जा रहा है। सो दैट इज हाउ इट इज, एंड दिस इज हाउ वी शुड बी लीडिंग आवर लाइफ। सो विल रीड ओनली सो मच टुडे। थैंक यू सो मच।